ایک مرتبہ حوض کوثر کا پانی پی لینا کبھی پیاسا نہیں ہوگا. یہ اس پانی کی خصوصیت ہے. اللہ کا رسول دوسری حدیث میں بیان فرماتے ہیں اس پانی میں حوض کوثر میں اس دن اتنے جام ہوں گے, اتنے گلاس ہوں گے کہ آسمان میں جتنے ستارے ہیں, جتنے تارے ہیں آسمان میں, ہم تاروں کو گن نہیں سکتے ہیں. لاکھوں کروڑوں اربوں کی تعداد میں تارے ہیں, پتہ نہیں صرف اللہ رب العالمین کے علم ہے کتنے تارے ہیں. اللہ کے رسول بیان فرماتے ہیں کہ حوض کوثر میں اتنے جام ہوں گے, اتنے کیا ہے گلاس وغیرہ ہوں گے, ان سے کیا ہے میں اپنی امتیوں کو پانی پلاؤں گا. 5 طرح کے لوگوں کو کیا ہے 5 طرح کے لوگ حوض کوثر میں آئیں گے. ایک ہی طرح کے لوگ ہوں گے جو حوض کوثر سے ان کو پانی پینا نصیب ہوگا, جو صحیح ہوں گے, مومن ہوں گے, متقی ہوں گے, پرہیزگار ہوں گے, اللہ رسول کی باتوں پر چلنے والے ہوں گے. ان لوگوں کو لایا جائے گا, یہ آئیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دستی مبارک سے پانی پیئیں گے, کبھی پیاسا نہیں ہوں گے. اور 4 طرح کے لوگ, ایک کافر بھی آئے گا, مشرک بھی آئے گا, منافق بھی آئے گا, مرتد بھی آئے گا, بدعتی بھی آئے گا. یہ لوگ آئیں گے حوض کوثر میں, لیکن دھکے دے کر باہر کر دی جائے, دھکے دے کر ان کو وہاں سے ہٹا دیے جائے. مرتد آئے گا, مرتد کہتے ہیں جس نے اسلام قبول کیا اور بعد میں پھر اسلام کو چھوڑ دیا, ایسے لوگوں کو مرتد کہا گیا. ان کو لایا جائے گا, پھر فرشتے ان کو کیا ہے اللہ کے رسول پانی پلانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. فرشتے کہیں گے کہ نہیں, ان کو پانی نہیں پلانا ہے. معلوم ہے آپ کے بعد انہوں نے دنیا میں کیا کیا ہے, یہ مرتد ہو گیا تھا, دین چھوڑ دیا تھا, دھکے مار کے بھگا دیا جائے گا. کافر آئے گا, مشرک آئے گا, منافق آئے گا, اللہ کے رسول کو بتلایا جائے گا یہ کافر مشرک منافق ہے, انہیں بھی دھکے مار کر وہاں سے ہٹا دیے جائیں گے. بدعتی لوگ آئیں گے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پانی پلانا چاہیں گے. فرشتے کہیں گے رک جاؤ, ان کو پانی نہیں پلانا ہے. کہیں کیوں, یہ تو نئی امت کے لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتے بتلائیں گے کہ نہیں, آپ کی دنیا سے آ جانے کے بعد انہوں نے آپ کے دن میں نئی چیزوں کو ایجاد کیا تھا, بدعت جیسے کام کو انجام دیا تھا, اس لیے آج حوض کوثر کا پانی پینا ان کے مقدر میں نہیں ہے. سحقن سحقن اللہ کے رسول کہیں گے دور ہٹاؤ, دور ہٹاؤ, دھکے مار کر ان کو وہاں سے ہٹا دیے جائیں گے. یہ بدعتیوں کا انجام ہوا قیامت کے دن میدان میں. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تمام قسم کی تعریفات وحدہ لا شریک خالقی کائنات مالکی ارض و سما کے لیے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نام اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ ذاتی مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا،
اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہبری کا بندوبست فرمایا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں اللہ کے آخری نبی، آخری رسول بنا کر مبعوث کیے گئے، جنہوں نے دنیائے انسانیت کے سامنے ایک مکمل نظام زندگی اور ایک مکمل نظام حیات پیش کیا ہے۔ قرآن نے اسے اسلام سے تعبیر کیا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور اسلام کے علاوہ جو بھی دین اور مذہب اس دنیا میں پایا جاتا ہے، اللہ رب العالمین کی نظر میں اسے کوئی حیثیت اور درجہ حاصل نہیں ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے کے بعد اب تمام انسانوں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اوپر ایمان لائے، ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارے، زندگی کے ہر شعبے میں، ہر موڑ میں، چاہے اس کا تعلق عبادات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات سے ہو، ہر چیز میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ تسلیم کرنا ضروری ہے۔ جو شخص ایسا کرے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی ہے، اور جو شخص اس سے ہٹ کر زندگی گزارے گا ان کے لیے دنیا اور آخرت میں ناکامی ہے، نامرادی ہے، ہلاکت و بربادی ہے۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے انشاءاللہ تعالی اسی کے ضمن میں گفتگو ہوگی۔ آج کے خطبے کا موضوع ہوگا ماہ شعبان کی فضیلت، ماہ شعبان میں ہونے والی بدعات، نیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مہینے کے تعلق سے کیا سنت رہی ہے، اور صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا۔ انشاءاللہ تعالی اس ضمن میں گفتگو ہوگی۔ قرآن کریم سے جو آیت پڑھی گئی ہے، سب سے پہلے آپ اس کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ میری عبادت کریں۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ قرآن کریم یہ آیت بتلاتی ہے کہ انسان اور جن یہ دونوں مخلوق اللہ رب العالمین کی عبادات کے مکلف ہیں، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مکلف ہیں، سنت رسول کے مکلف ہیں۔ ان دونوں مخلوق پر اللہ رب العالمین نے یہ عائد کیا ہے۔ انہی دونوں مخلوقوں کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت اور جہنم بھی تیار کی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے انسانوں کی تخلیق کا اصل مقصد بتلا دیا، جنوں کی تخلیق کا اصل مقصد بتلا دیا کہ میں نے انسانوں کو اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب عبادت کریں تو عبادت کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنا کر بھیجا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے عملی نمونہ، پریکٹیکل یہ عمل کیا ہے دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ جناب علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے عملی طور پر لوگوں کو عبادت کر کے بتلا دیا، دکھلا دیا کہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ نمازیں پڑھنی ہیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، کس طرح سے عبادتیں کرنی ہیں، نمازیں پڑھنی ہیں، کتنی رکعتیں پڑھنی ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ بتلا دیا، عمل کر کے بتلا دیا۔ نفل کا اہتمام کس طرح سے کرنا ہے، تہجد کا اہتمام کس طرح سے کرنا ہے، صدقہ و خیرات، زکات وغیرہ، حج، یہ سارے اعمال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلا دیا، اور کوئی گوشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں چھوڑا۔ معلوم یہ ہوا کہ عبادات کے معاملے میں ہوں یا معاملات کے معاملے میں ہوں، لین دین کے معاملے میں ہوں،
دنیاوی معاملے ہوں، اخروی معاملے ہوں، ان سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ضروری ہے، تبھی جا کر ہم صحیح معنوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلنے والے کہلائیں گے۔ تو آئیے، یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، شعبان کی آج 10 تاریخ ہے، اس شعبان کے مہینے کے بعد رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔ اس شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں کیا کرتے تھے۔ ایک حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان اور رمضان کے مہینے میں سب سے زیادہ لگاتار روزہ رکھتے ہوئے دیکھا ہے، اور ان دونوں مہینوں کے علاوہ کسی بھی مہینے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لگاتار روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہہ رہی ہیں۔ معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے کے علاوہ شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں یہ ذکر ملتا ہے کہ گویا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں پورا شعبان روزے سے گزار دیتے تھے، اللہ یہ کہ ایک آدھ دن اخیر میں جا کر چھوڑتے، ورنہ پورا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے شعبان کے مہینے میں۔ کیا معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں لگ بھگ پورا مہینہ روزہ رکھتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس مہینے کے تعلق سے۔ اسامہ ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان کے مہینے میں تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھتے ہوئے میں نے دیکھا، تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا، پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ شعبان کے مہینے میں جس قدر لگاتار روزہ رکھتے ہیں، اس قدر اس شعبان کے مہینے کے علاوہ کسی اور مہینے میں آپ روزہ نہیں رکھتے؟ جتنے روزے آپ اس مہینے میں رکھتے ہیں، لگاتار رکھتے ہیں، تقریباً پورا مہینہ روزہ رکھ لیتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ شعبان کے مہینے میں اس لیے پورا مہینہ تقریباً روزہ رکھتا ہوں کہ اس مہینے میں اللہ رب العالمین بندوں کے اعمال اس مہینے میں اللہ رب العالمین کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، اس مہینے میں بندوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اللہ رب العالمین کی طرف۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا عمل جب اٹھے اللہ رب العالمین کی طرف، اس وقت میں روزے کی حالت میں رہوں، عبادت کی حالت میں رہوں، اس لیے میرا شعبان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھتا ہوں۔ اس حدیث سے بھی شعبان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور سنت اس مہینے میں کیا رہی ہے وہ ہمیں پتہ چل رہا ہے اس سے۔ تو شعبان کے مہینے میں ہم کو زیادہ سے زیادہ چاہیے کہ روزہ رکھیں اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اقتداء کرنا چاہتے ہیں۔ یہ حدیث ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں شعبان کے اس مہینے کی 15 تاریخ کی کوئی فضیلت ہے، کوئی خصوصیت ہے؟ شعبان کے مہینے کی 15ویں تاریخ اور 15ویں رات کی کوئی فضیلت ہے، کوئی خصوصیت ہے کہ شعبان کی 15ویں تاریخ کو خصوصی طور پر روزہ رکھا جائے اور 15ویں تاریخ کی رات کو خصوصی عبادت کا اہتمام کیا جائے؟ کیا ایسی کوئی حدیثیں ہیں؟ کیا ایسی کوئی اللہ کے رسول کی سنت ہے؟ اس کا جواب ہم تلاش کرتے ہیں قرآن و احادیث میں۔ ہم اس کا جب جائزہ لیتے ہیں، تلاشتے ہیں، تو کہیں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے تعلق سے کوئی سنت ہم کو نہیں ملتی ہے کہ 15ویں شعبان میں خصوصی اللہ کے رسول نے روزہ رکھا، 15ویں شعبان کی رات میں خصوصی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتیں کی ہو، اہتمام کیا ہو جاگنے کا۔ ایسا کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، ان کی سنت، صحابہ کرام کا طرز عمل نہیں ملتا۔
जब नहीं मिलता है ऐसा, तो अब बाद के अदवार में आने वाले लोगों ने क्या है ऐसा करना क्यों शुरू कर दिया है, क्यों शुरू कर दिया है। आइए एक हदीस है जो कि सही हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं उस हदीस के ताल्लुक से, वो हदीस सही है। 15वें शाबान की रात के ही बारे में वो हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है कि 15वें शाबान की जब रात होती है, तो 15वीं शाबान की रात को अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मखलूकात की तरफ झांकता है, देखता है, नजरे रहमत से देखता है अपनी पूरी मखलूकात की तरफ, और उनमें से अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मखलूकात में से सबको माफ कर देता है, बख्श देता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन 15वीं शाबान की रात को करता है। लेकिन 15वीं शाबान की रात में जो माफी का ऐलान होता है अल्लाह के रसूल अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से, इसमें अल्लाह के रसूल ने कहा है कि मगर 2 किस्में के लोग ऐसे होते हैं जिनकी माफी का ऐलान नहीं होता है, जिनकी मगफरत का ऐलान नहीं होता है। उनमें से पहला शख्स मुशरिक होता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ शिर्क करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ कुफ्र करता है। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफी का ऐलान नहीं करता है। ये पहला शख्स होता है। और दूसरा वो शख्स होता है जिसकी माफी का ऐलान अल्लाह रब्बुल आलमीन नहीं होता है, वह मुसाहिद होता है, यानी एक मुसलमान के खिलाफ अपने दिल में कीन्हा रखने वाला, बुग़्ज़ रखने वाला, कि जायज नाहक एक मुसलमान के खिलाफ अपने दिल में कीन्हा और बुग़्ज़ रखा हुआ है, ऐसे लोगों के बारे में भी अल्लाह के रसूल कहते हैं कि उस दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से माफी का ऐलान नहीं होता है। तो मालूम ये हुआ इस हदीस से कि 2 लोग होते हैं, एक मुशरिक काफिर और दूसरा अपने मुसलमान भाई के ताल्लुक से दिल में कीन्हा रखने वाला। देखिए, दिल में कीन्हा रखने वाला का एक मामला है, इसकी वजाहत, एक आदमी एक अपने मुसलमान भाई की गलती पर तंबीह करता है, खुद नमाज रोजे का पाबंद है, अपने मुसलमान भाई को देखता है कि ये शख्स नमाज नहीं पढ़ता है, रोजा नहीं रखता है, जुआ खेलता है, शराब पीता है, लॉटरी खेलता है, सूद खाता है, हराम चीजों में क्या है मुलव्वस है, हराम कमाई में मुलव्वस है, हराम के बिजनेस को अपनाया हुआ है वगैरह, जिनाकारी है, डाका जनी है, चोरी, बहुत सारे गुनाहों में वो आदमी मुलव्वस है। एक मुसलमान भाई जो सही मानों में दीनदार है, नमाज रोजे के पाबंद है, अपने उस मुसलमान भाई के ताल्लुक से खैरखाही करता है। क्या खैरखाही करता है कि उनको बुराई से रोकना चाहता है कि देखो कि मुसलमान की जिम्मेदारी होती है 5 वक्त नमाज पढ़ना, इसलिए आपको नमाज पढ़ना चाहिए। एक मुसलमान की जिम्मेदारी होती है साल भर में 1 महीने के रोजे रखना, आपको रोजा रखना चाहिए। एक मुसलमान की जिम्मेदारी होती है हलाल और हराम में तमीज करना, आपको हलाल और हराम में तमीज करनी चाहिए, हलाल बिजनेस अपनाना चाहिए। जुआ खेल रहे हैं तो आपको नहीं खेलना चाहिए, शराब पी रहे हैं आपको नहीं पीना चाहिए, लॉटरी खेल रहे हैं आपको नहीं खेलना चाहिए, सूदी कारोबार में आप मुलव्वस हैं आपको ये सब नहीं करना चाहिए। ये उनको खैरखाना अंदाज में नसीहत करता है, उनको उस बुराई से रोकना चाहता है और उनको भी क्या है दीन इस्लाम की तरफ बुलाना चाहता है, लाना चाहता है, ताकि कल कयामत के दिन ये बंदा जहन्नमी ना बन जाए और जन्नत का हकदार ये भी बन जाए। ये खैरखाना अंदाज और ये खैरखाना ख्वाहिश उस मुसलमान की तई और परती क्या है इस मुसलमान के अंदर होती है। और वो अब इसकी वजह से क्या है, वो आदमी ये समझता है कि हमारे साथ वो सख्ती कर रहा है, तो हमारे साथ क्या है वो बुरा सलूक कर रहा है, तो हमको क्या है बार बार इसके ताल्लुक से वो कहता है, तो अब वो क्या है दूरी इख्तियार करता है, वो हटता है उनसे, और इसकी वजह से उनके अंदर क्या एक तरह की चिढ़ पैदा होने लगती है, गुस्सा पैदा होने लगता है। अब ये मुसलमान जो उनके ताल्लुक से खैरखाना अंदाज में उनको नसीहतें करता है, जब देख रहा है कितनी नसीहतों के बावजूद ये अल्लाह और रसूल की इताअत और फरमाबरदारी की तरफ नहीं आ रहा है, बल्कि उल्टा उसका रिएक्शन हो रहा है, तो अब ये मुसलमान भाई उसके ताल्लुक से क्या है, उसके ताल्लुक से क्या है दूरी बनाता है, दिल में ये चीज
चीज रखता है कि ये आदमी बहुत खराब है, चूंकि नमाज नहीं पढ़ता है, रोजा नहीं रखता है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, जिनाकार है, बदकार है, सुदखोर है, हलाल और हराम की तमीज नहीं करता है, तो ऐसी चीजें अपने दिल में उसके ताल्लुक से रखता है। ये किन्हा नहीं है, ये बुग़्ज़ नहीं है, ये हसद नहीं है, इसकी मैं वजाहत कर रहा हूं। सही मानों में किन्हा बुग़्ज़ हसद उसको कहते हैं कि एक मुसलमान के प्रति उनकी तरक्की को देखकर एक मुसलमान जलता है, ये तबाह हो जाए, ये बर्बाद हो जाए, ये हलाक हो जाए, इनको नुकसान हो जाए, दुनिया में नुकसान हो जाए, उखरवी नुकसान हो जाए। ऐसी चीज अपने दिल में अगर किसी मुसलमान भाई के ताल्लुक से कोई अगर रखा हुआ है, जिसको किन्हा कहते हैं, इसी को हसद बोलते हैं, इसी को बुग़्ज़ बोलते हैं, ऐसे लोगों के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि शाबान की 15वीं तारीख को अल्लाह रब्बुल आलमीन जो माफी का ऐलान करता है, उनमें से मुशरिक खारिज होता है, उनमें से वो आदमी खारिज होता है जिनके दिल में मुसलमान भाई के ताल्लुक से किन्हा बैठा हुआ है। ऐसे लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन 15वें शाबान की रात को भी माफी का ऐलान नहीं करता है, बल्कि भीड़ देता है कि बंदा क्या है, कब तौबा कर ले, फिर उसकी माफी का ऐलान होगा, उससे पहले नहीं। ये हदीस मैंने बताया। इस हदीस से बाज लोगों ने ये समझा कि 15वीं शाबान की फजीलत है, इसलिए उस रात हम लोगों को इबादतें करनी चाहिए, दिन में रोजा रखना चाहिए वगैरह। इसलिए क्या है, बाज लोगों ही नहीं भाई, नहीं बल्कि मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका शाबान के ताल्लुक से 15वीं तारीख को दिन और रात में बड़ा एहतमाम करते हैं, जो शरीयत से हट के उनका एहतमाम होता है। दिन में रोजा खुसूसी रखते हैं और रात में खुसूसी इबादत की महफिलें जमाते हैं, एहतमाम करते हैं, जलसे जुलूस करते हैं और बहुत सारी बिदअतों को अंजाम देते हैं। चिरागा वगैरह करते हैं, कब्रिस्तान वगैरह जाते हैं, खाने की मुख्तलिफ किस्म की पकवान तैयार करते हैं, गोया के ईद और खुशी का वो दिन और वो रात बना लेते हैं, जो कि सरासर शरीयत से हटके है। ऐसा काम बिदअत है, ऐसा काम सुन्नत रसूल से साबित नहीं है। 15वीं तारीख को खुसूसी तौर पर रोजा रखना ये जायज नहीं है। मैंने बताया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है कि अल्लाह के रसूल तकरीबन पूरा महीना रोजा से रखते थे, तकरीबन पूरा महीना। तो कोई अगर रोजा से रहना चाहता है तो शाबान के महीने की 1 तारीख से रोजा रखे ना, रखे, ये सुन्नत पर अमल होगा। लेकिन हाँ, एक हदीस और भी है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत के लिए बयान फरमाया है, फला तसूमू इज़ा बक़िया निस्फ़ु मिन शाबान फला तसूमू। शाबान महीने का जब निस्फ बाकी बच जाए, निस्फ में आधा महीना गुजर जाए और आधा बाकी बच जाए, तो आधे के बाद अब उनको रोजा नहीं रखना है। उम्मतियों को अल्लाह के रसूल ने ये हिदायत दी है कि कोई उम्मती अगर शाबान के महीने में रोजा रखना चाहे तो ज्यादा से ज्यादा 1 तारीख से लेकर 15वीं तारीख तक वो रोजा रख सकता है, लेकिन 15वीं के बाद उनको रखने की इजाजत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं दी है। अल्लाह के रसूल ने खुद रखा है, लेकिन उम्मत को इजाजत नहीं दी है, रोका है। इसलिए कोई अगर रोजा रखना चाहता है तो 15वीं तारीख तक रोजा रखे, ये सुन्नत पे अमल होगा, लेकिन 15वीं के बाद अब उनको नहीं रखना है। हाँ, वो आदमी जो सुन्नत रसूल के मुताबिक हफ्तावारी रोजा रखता है, हर महीना जो रोजा रखता है वो उसका आदि है तो रख सकता है। जैसे हफ्तावारी रोजा में जुमरात का रोजा है, सोमवार का रोजा है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा रखा करते थे, जुमरात सोमवार। कोई इसमें अमल करना चाहे तो हर जुमरात को, हर सोमवार को रोजा रखे। तो इस रोजा में वो 15 शाबान के बाद भी हफ्ता आ रहा, जुमरात का दिन आ रहा है, सोमवार का दिन आ रहा है, तो रोजा रख सकता है, उसके लिए गुंजाइश है। लेकिन जो रोजा नहीं रखता है इन रोजों को और खुसूसी एहतमाम करने लगे, उसके लिए 15वीं की बात जायज नहीं। इसी तरह से महीने में अल्लाह के रसूल हर महीना रोजा रखते थे। चांद की 13वीं, 14वीं, 15वीं तारीख, चांद की 13वीं, 14वीं, 15वीं तारीख ये अल्लाह के रसूल की सुन्नत है। कोई अगर हर महीना इस रोजा का एहतमाम करता है, 13वीं, 14वीं, 15वीं को रख सकता है, सुन्नत पर अमल होगा। उस तरह से शाबान की 15वीं तारीख का रोजा भी उनका आ जाएगा, रख ले। लेकिन साल भर ये रोजा रखा ही नहीं है,
ना तो हफ्तावारी रोजा रखा है, ना तो महीना रोजा रखा है। अब 15वीं शाबान की फजीलत और एहतमाम में 15वीं शाबान के दिन का खुसूसी एहतमाम करता है रोजा रखने का, ये जायज नहीं है उनके लिए, ये रोजा उनके लिए बिदअत ठहरेगा। क्योंकि खुसूसी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 15वीं शाबान में क्या है, रोजा रखने का जिक्र नहीं है। ना तो सहाबा ने अमल किया है, ना तो ताबईन ने अमल किया है। इसी तरह से खुसूसी तौर पर 15वीं शाबान की रात में रोजा रख, ये एहतमाम करना इबादतें महफिलें जमाना, और खुसूसी क्या है, इबादत के लिए क्या है, फारिग हो जाना कि आज पूरी रात हम जाकर इबादत करेंगे। क्योंकि ये आज शबे बरात है, शबे बरात है। ये शबे बरात कहना भी गलत है, क्योंकि ये रात शबे बरात की रात नहीं है, वो फजीलत वाली रात नहीं है। वो फजीलत वाली रात जिनको हम शबे कदर कहते हैं, शबे बरात कहते हैं, वो रमजान में रात आती है, वो लैलतुल कद्र है, वो शाबान में नहीं है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, वहां तफसील मौजूद है, तफसील का मौका यहाँ पर इशारा मैं सिर्फ आपको कर रहा हूँ। तो 15वीं शाबान की रात में खुसूसी एहतमाम करना इबादत का, ये बिदअत है, ये गलत है। खुसूसी उस दिन क्या है, रोजा रखना, ये बिदअत है, ये गलत है। और 15वीं शाबान की रात को या शाबान की किसी भी रात को चिरागा करना, मोमबत्तियां जलाना, रोशनी जलाना और कब्रिस्तान एहतमाम करके जाना, कब्रिस्तान में ट्यूबलाइट वगैरह लगाना, जनरेटर का एहतमाम करना, वहां चिरागा करना, फूल वगैरह सजाना, जैसे क्या है बिदअती के लोग ऐसा अपनी कब्रिस्तान में करते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूं। कहीं आप भी कहीं ऐसा ना हो कि उन लोगों की तर्ज अमल को देखकर आपके अंदर भी ये जज्बा पैदा होने लगे, हमारे भी बाप दादा कब्रिस्तान में दफन है, हम क्यों ना ऐसा करें, जनरेटर का एहतमाम कर लेते हैं, बिजली का एहतमाम कर लेते हैं, फूल पत्तियों के एहतमाम कर लेते हैं, रात भर वहीं जाकर गुजारेंगे और क्या उन लोगों को रोशनी का इंतजाम कर देंगे। कहीं आप भी इस बिदअत में मुब्तला ना हो जाए, इसलिए मैं आपको मुतनब्बे कर रहा हूं। कैसे लोग उम्मत में मौजूद हो चुके हैं जो इन बिदअतों को अंजाम दे रहे हैं, जो कि बिदअत है, शरीयत से हट के है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कोई अमल नहीं किया, सहाबा किराम ने ऐसा कोई अमल नहीं किया और ताबईन ने ऐसा कोई अमल नहीं किया है। इसलिए हम सबको ऐसे खुराफात और ऐसे अमल और ऐसे बिदअतों से बचना चाहिए। इसका खतरनाक अंजाम भी अभी हम बयान करेंगे। 15वीं शाबान के ताल्लुक से और क्या बिदअतें हैं, मुख्तलिफ किस्म के आइटम, हलवा पूरी वगैरह क्या है, खाने के डिश तैयार करना, ये भी गलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ऐलान फरमाया है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कि मुसलमानों के लिए साल में सिर्फ 2 मरतबा ईद है, एक ईद उल जुहा है और एक ईद उल फित्र है, तीसरी कोई ईद नहीं है जिनको आप अपनी तरफ से क्या है एहतमाम करने आपके लिए जायज नहीं है। ये गैरों की नक्काली है, जिनके यहाँ ईद की तादाद का कोई क्या है, कोई गिनती ही नहीं है, जब चाहते हैं जिस तरह चाहते हैं और नई नई क्या है ईद का वो एहतमाम कर लेते हैं। ऐसा मुसलमानों को करने का हुक्म नहीं दिया गया है। ये मुख्तसरन मैंने आपको बतलाया। बाज लोगों का, बल्कि बिदअतियों का ये अकीदा है, ये अकीदा है बिदअतियों का, जो सुन्नत पे अमल नहीं करना चाहते हैं, उनका ये अकीदा है कि उनके जो लोग अपने करीबी रिश्तेदार जो मर गए हैं उनकी रूहें 15वीं शाबान की रात को बाकायदा घर आती है। ये अकीदा है बिदअती लोगों का कि मरे हुए लोगों की रूहें, उनके रिश्तेदार लोगों की रूहें घर आती हैं। जब घर आती है तो कहीं घर से निराश वापस न चला जाए, इसके लिए उन्होंने क्या है ये अकीदा को बड़ा, जो हिंदुआना अकीदा है, हिंदुओं का अकीदा है कि उनके यहाँ मुर्दे वापस आते हैं, रूहें आती हैं। यही अकीदा से मुसलमानों ने घर लिया और जब ऐसा घर लिया तो अब उन रूहों की इज्जत के लिए, उनके एहतमाम के लिए, उनकी कदर के लिए, उनकी मेहमान नवाजी के लिए क्या करते हैं, मुख्तलिफ तरह के खाना तैयार करते हैं, घर के एक गोशे में ले जाकर क्या है उस खाने को रखते हैं, इस अकीदे के साथ कि हमारे रिश्तेदार जो मर गए हैं वो आज की रात उनकी रूहें क्या आएंगे और यहाँ से भूखे वापस चली जाएंगे। इसलिए खाने का इंतजाम किया गया है, फला जगह रखा गया है और वहां नजराना फातिहा वगैरह सारा कुछ करते हैं। ये रूहों के लिए क्या है वहां पर इंतजाम करते हैं, जो शरीयत से हट के है। ऐसा काम बिदअत है और मुसलमानों को ऐसा अकीदा रखना ये हिंदुआना अकीदा है। बहुत सारे काम इनमें से शिर्क वाले हो रहे हैं, बहुत सारे काम बिदअत वाले हो रहे हैं। तो शाबान के महीने के ताल्लुक से लोगों की ये बिदअतें इजाद हो चुकी है। धरले से लोग क्या इसका एहतमाम कर रहे हैं, मुशरिकाना अमल भी कर रहे हैं,
बिदअती वाला अमल भी कर रहे हैं। मैंने आपको बतलाया कि इस महीने में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत क्या है और इस महीने में आज के दौर में मुसलमानों का अमल और रवैया क्या है। हमें अल्लाह के रसूल की सुन्नत पे अमल करना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा चाहे तो आप 15 शाबान तक 1 तारीख से लेकर रोजा रखें, इत्माम करें। 15 के बाद आपको नहीं रखना है। इससे ज्यादा इसमें आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। नेक अमल अब 24 घंटा करते रहे अल्लाह रसूल के लिए, हमेशा करते रहे। कुरान की तिलावत हो, तस्बीह व तहलील हो, नफली नमाज का इत्माम हो, हमेशा करना वगैरह। एक दूसरा अकीदा इसके ताल्लुक से कि कब्रों की जियारत खुसूसी तौर पर क्या है, लोग बिदती लोग इस महीने में 15वीं शाबान को करते हैं। जैसा कि मैंने बतलाया, चिरागा करते हैं, कब्रस्तान को उजाला करते हैं और काफी तादाद में भीड़ की शक्ल में कब्रस्तान में लोग पहुंचते हैं और वहां जाकर बहुत कुछ करते हैं। उनके लिए दुआएं मांगते हैं कि उन्हीं से अपने आप को मांगते हैं, अपने लिए क्या है मांगते हैं वगैरह। ये बहुत कुछ होता है। दलील हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नतुल बकी में अचानक गए और वहां मदफून सहाबाए किराम के लिए आपने इस्तिग़फ़ार किया, दुआएं की आपने। ये दलील बनाते हैं जो कि दुरुस्त नहीं है। अल्लाह ये सही वाक़िया किया है, इसको सुनिए फिर आपको समझ में आ जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात में सोए हुए हैं, आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बगल में सोई हुई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आपको बतलाया गया कि जन्नतुल बकी में मदफून सहाबा के लिए आपको जानी है और दुआ इस्तिग़फ़ार करनी है आपको। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चुपके से उठे और जन्नतुल बकी कब्रिस्तान है, मस्जिद नबवी से क्या है सामने, वहां चले गए और आपने उनके लिए दुआएं की। काफी देर तक खड़े होकर उनके लिए दुआएं। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने देखा, और जगी हुई थी, देखा उन्होंने कि अल्लाह के रसूल चुपके से निकल गए हैं, मुझे कुछ नहीं कहा है, दरवाजा बंद किया है। इनको शक हुआ, ये भी आहिस्ता से पीछे पीछे होली, पीछे पीछे गई और दूर से क्या है ओट में आड़ में होकर नबी को आयशा ने देखा कर क्या रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतुल बकी में सहाबा के लिए क्या है आपने दुआएं की काफी देर तक, फिर वापस होने लगे। जब वापस होने लगे तो हजरत आयशा ने देखा कि अल्लाह के रसूल दौड़ती हुई आई और आकर पहले फिर अपने बिस्तर में सो गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आए और कमरे में जब दाखिल हुए, सोना चाहा तो देखा कि आयशा का की जो सांस है तेज तेज चल रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा आयशा से क्या बात है, सांस क्यों तेज चल रही है, क्या वजह है? तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर तुम मुझे नहीं बताओगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे बताएगा। वो लतीफ है, वो खबीर है, वो बाखबर है, वही के जरिए से मुझे पता चल जाएगा। आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने कहा कि ऐसा मामला है कि आप जब उठकर गए तो हमको ऐसा लगा कि आप कहां जा रहे हैं, हो सकता है दूसरी बीवियों के पास आप जा रहे हैं, तो इसलिए मैं आपके पीछे होकर खोली थी आपको देखने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ए आयशा, क्या तूने मेरे ताल्लुक से ऐसी बदगुमानियां पैदा कर दी? क्या तुम ये समझ रही हो कि आज बारी तुम्हारे यहाँ है, मैं तुम्हारी इजाजत के बगैर दूसरी, ऐसा मुमकिन नहीं है। फिर बतलाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से वही आई, जिब्रील अमीन आए, बतलाया मुझे घर के अंदर वो जिब्रील दाखिल नहीं हुए, तुमने इसलिए नहीं दाखिल हुए और तुमको जगाना इसलिए मैं मुनासिब नहीं समझा कि मैं समझा कि तुम सो रही हो, और जिब्रील घर के अंदर इसलिए दाखिल नहीं हुए कि तुम इजाफी कपड़े उतार चुकी थी, सिंपल लिबास में थी, पर्दे में नहीं थी। जिब्रील इसलिए अंदर दाखिल नहीं हुए, बाहर ही क्या खड़े रहे और मुझे वहीं से बतलाया और मैं चला गया। तो सहबा के लिए क्या है मैंने इस्तिग़फ़ार किया। ये सही वाक़या, ये पस मंजर में है, ये साबान का महीना नहीं था, सफर का महीना था। इससे ये दलील पकड़ना कि कब्रों की ज़ियारत एहतमाम के साथ करना दुरुस्त नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, नहयतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर फज़ूरुहा। अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाया एक हदीस में कि मैंने तुम लोगों को ज़ियारत कुबूर से रोक दिया था, फज़ूरुहा, अब तुम कब्र की ज़ियारत कर सकते हो। ये उमूमी इजाजत है कि कब्र की ज़ियारत अब तुम कर सकते हो। पहले रोका गया
गया था, जो भी कारण रहा हो, तफसील है, तफसील में जाने का मौका अभी नहीं है। अल्लाह के रसूल ने बाद में इजाजत दी, लेकिन इस इजाजत का ये मतलब नहीं है कि खुसूसी एहतमाम करके कब्रों की जियारत की जाए। ऐसा सहाबा का अमल नहीं है, नबी का अमल ऐसा नहीं है। इसलिए कब्रों की जियारत का सही तरीका और सुन्नत का तरीका ये है कि जब जिस वक्त दिन हो रात हो 24 घंटे में किसी भी वक्त आपके दिल में ख्याल आया कि मेरे माँ बाप, मेरे रिश्तेदार फला जगह क्या है, मदफून है, पता नहीं किस हालत में है, अज़ाब कब्र में मुब्तला है, क्या है नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन से क्या हमको दुआएं करनी चाहिए उनके लिए। ये अचानक आपको ख्याल आया तो फौरन आप कब्रिस्तान पहुंच गए, चाहे दिन हो चाहे रात हो, किसी भी वक्त हो, और वहां मदफून मोमिनीन जो मदफून है, चाहे आपके रिश्तेदार हो या गैर रिश्तेदार हो, मोमिन है जो, उनके लिए आपने इस्तिग़फ़ार किया। ये ज़ियारत कबूर का ये तरीका है, ये तरीका है, ये सुन्नत है। और इहतिमाम करके जाना कि फला तारीख को, फला दिन, फला वक्त क्या है, इतने लोग हुजूम बनाकर जाएंगे, ट्यूबलाइट वगैरह लेकर जाएंगे, चिरागा करेंगे, और क्या है, और भी रोशनी का इंतजाम करेंगे। मुझे याद है कि मैं छोटा था या मैं पढ़ रहा था, उस वक्त यहाँ के लोग भी कब्रिस्तान जाते थे। वो एक वक्त पेट्रोल से होता था, उसको जलाते थे, उसका इहतमाम करते थे, काफी तादाद में लोग कब्रिस्तान पहुंचते। यही अकीदा था। अल्लाह का फजल है, आज हमारी इस बस्ती और गांव से अकीदा खत्म हो चुका है। खत्म होने की वजह यही है कि मेरे इल्म में जब ये कुछ आया, मैंने पढ़ा और यहाँ मैंने तकरीरें के लोगों को बताया, तो फिर क्या ही लोग इस अमल से रुक गए। तो अच्छी बात है, बिदअत से रुक गए, सुन्नत की तरफ लोग माइल हुए। कहना यह है कि ये काम गलत है। आप इत्तेफाकी तौर पर जब याद आए कब्रों की जियारत करें, मदफून लोगों के लिए दुआएं करें, खुसूसी तौर पर एहतमाम करके जाना ये सही नहीं है, ये बिदअत है। अब मुख्तसरन मैं अपनी बात को बिदअतियों का अंजाम क्या है ये कहकर अपने खुतबे को खत्म करता हूं। आइए, बिदअतियों का अंजाम क्या है, चाहे 15वीं शबान के ताल्लुक से बिदअती काम अंजाम देने वाले हो, या माह मुहर्रम में बिदअती की काम अंजाम देने वाले हो, या ईद मिलादुन नबी के मौके पर बिदअत काम अंजाम देने वाले हो, या किसी भी मौके पर, किसी भी दिन, किसी भी महीने के ताल्लुक से सुन्नत से हटकर बिदअत का काम अंजाम देने वाले हो, उनका अंजाम क्या है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हम सुनते हैं और उसके बाद हमको मालूम हो जाएगा कि बिदअत हम लोगों को ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एक हदीस है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा रावी हदीस है, सही मुस्लिम की हदीस है, मन अहदसा फी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्द। जो आदमी हमारे दीन में क्या है, वो ऐसा काम इजाद कर ले जिसका ताल्लुक हमारे दीन से नहीं है, हमारी शरीयत से नहीं है, हमारी महर नहीं लगी हुई है, हमने इजाजत नहीं दी है, हमने अमल करके नहीं दिखलाया है, या सहाबा का उसमें अमल नहीं, फहुव मरदूद, वो काम मरदूद है, वो काम बातिल है, वो काम क्या है, मरदूद है, बातिल है, ऐसा करने वाले लोग मरदूद हैं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो बिदअती लोग जो बिदअतों को अंजाम देते हैं ये समझ कर कि ये नेकी का काम है और दीन में उसको दाखिल कर देते हैं, तो वही अल्लाह के रसूल कह रहे हैं कि दीन में जिसने एक नया काम को ईजाद कर लिया जो मेरी सुन्नत से साबित नहीं है, मेरे अमल से साबित नहीं है, सहाबा की सुन्नत व अमल से साबित नहीं है, कौल व फ़िल से साबित नहीं है, ये बिदअत है और ऐसा काम मरदूद है। और ऐसे करने वाले लोग कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम तक ले जाने वाली है। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। और सुनिए, मैदान महशर बर्पा होगा, मैदान महशर की तकलीफों को आपने सुन लिया है मुख्तलिफ खुतबों में कि 50,000 साल का वो दिन लोग शिद्दते प्यास और भूख की वजह से तड़प रहे होंगे, जुबानें बाहर आ रही होंगी, कुत्ते की मानते जुबान लटक जाएगी और इस कदर परेशान हाल होंगे, निढाल होंगे, एक एक कतरा पानी के लिए, एक एक बूंद पानी के लिए लोग उस दिन तरस रहे होंगे। ये आलम होगा उस दिन नफ्से नफ्सी का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं कि हौज़े कौसर अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे उस दिन अता करेगा। इन्ना अतैनाकल कौसर, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि ऐ नबी पाक, हमने आपको हौज़े कौसर अता किया है। हौज़े कौसर क्या चीज है? ये हौज़े कौसर ये है कि मैदान महशर में अल्लाह रब्बुल आलमीन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक हौज़ अता करेगा, बड़ा सा हौज़। उस हौज़ की मसाफत के ताल्लुक से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है कि कई
मील तक क्या है वो हाउस लंबा चौड़ा, कई मील तक, काफी क्या है मील तक, 1 महीने की मसाफत के मील तक के अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र किया है। गोया कि 1 महीने की मसाफत में इतना लंबा चौड़ा ये हाउस होगा। इस हाउस के ताल्लुक से हदीसों में बयान जिक्र मिलता है कि इस हाउस में पानी जो आ रहा होगा, जो नहर आ रही होगी, वो जन्नत से नहर बह के आ रही होगी, वही कौसर है। वो नहर क्या है? कौसर है, जो जन्नत से नहर बहती हुई आएगी। इस हाउस में पानी आएगा, उसी को कौसर कहा गया है। यह हौज़े कौसर है। उसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया जाएगा मैदान महशर में क़यामत के दिन। इस पानी की खूबी आप जानते हैं, इस अल्लाह के रसूल ने हदीसों में बयान फरमाया है, इस नहर के जो किनारे होंगे वो सोने के होंगे और मोतियां बिछी हुई होंगी, उस पर पानी चलकर आएंगे और इस पानी का जायका होगा कस्तूरी खुशबू से कहीं ज्यादा। इसका जायका होगा, खुशबूदार पानी होगा। पानी की मिठास क्या है? शहद से ज्यादा होगी, दूध से ज्यादा सफेद होगा, बर्फ से ज्यादा ठंडा होगा। ये पानी की खुशियात है। जो आदमी उस दिन उस पानी को 1 मरतबा पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। 1 मरतबा हौज़े कौसर का पानी पी लेगा, कभी प्यासा नहीं होगा। ये उस पानी की खुसूसियत है। अल्लाह का रसूल दूसरी हदीस में बयान फरमाते हैं, उस पानी में हौज़े कौसर में उस दिन इतने जाम होंगे, इतने गिलास होंगे कि आसमान में जितने सितारे हैं, जितने तारे हैं आसमान में, हम तारों को गिन नहीं सकते हैं। लाखों करोड़ों अरबों की तादाद में तारे हैं, पता नहीं सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के इल्म में है कितने तारे हैं। अल्लाह के रसूल बयान फरमाते हैं कि हौज़े कौसर में इतने जाम होंगे, इतने क्या है गिलास वगैरह होंगे, उनसे क्या है मैं अपनी उम्मतियों को पानी पिलाऊंगा। 5 तरह के लोगों को क्या है, 5 तरह के लोग हौज़े कौसर में आएंगे। एक ही तरह के लोग होंगे जो हौज़े कौसर से उनको पानी पीना नसीब होगा, जो सही होंगे, मोमिन होंगे, मुत्तकी होंगे, परहेजगार होंगे, अल्लाह रसूल की बातों पर चलने वाले होंगे। इन लोगों को लाया जाएगा, ये आएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्ती मुबारक से पानी पिएंगे, कभी प्यासा नहीं होंगे। और 4 तरह के लोग, एक काफिर भी आएगा, मुशरिक भी आएगा, मुनाफिक भी आएगा, मुर्तद भी आएगा, बिदअती भी आएगा। ये लोग आएंगे हौज़े कौसर में, लेकिन धक्के देकर बाहर कर दिए जाएंगे, धक्के देकर उनको वहां से हटा दिए जाएंगे। मुर्तद आएगा, मुर्तद कहते हैं जिसने इस्लाम कबूल किया और बाद में फिर इस्लाम को छोड़ दिया, ऐसे लोगों को मुर्तद कहा गया। उनको लाया जाएगा, फिर फरिश्ते उनको क्या है, अल्लाह के रसूल पानी पिलाने के लिए तैयार हो जाएंगे। फरिश्ते कहेंगे कि नहीं, इनको पानी नहीं पिलाना है, मालूम है आपके बाद इन्होंने दुनिया में क्या किया है, ये मुर्तद हो गया था, दीन छोड़ दिया था, धक्के मार के भगा दिया जाएगा। काफिर आएगा, मुशरिक आएगा, मुनाफिक आएगा, अल्लाह के रसूल को बतलाया जाएगा ये काफिर मुशरिक मुनाफिक है, उन्हें भी धक्के मारकर वहां से हटा दिए जाएंगे। बिदअती लोग आएंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको पानी पिलाना चाहेंगे, फरिश्ते कहेंगे रुक जाओ, इनको पानी नहीं पिलाना है। कहें क्यों, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरिश्ते बतलाएंगे कि नहीं, आपकी दुनिया से आ जाने के बाद इन्होंने आपके दिन में नई चीजों को इजाद किया था, बिदअत जैसे काम आज हौज़े कौसर का पानी पीना इनके मुकद्दर में नहीं है। सुहकन सुहकन अल्लाह के रसूल कहेंगे दूर हटाओ, दूर हटाओ, धक्के मारकर उनको वहां से हटा दिए जाएंगे। ये बिदअतियों का अंजाम हुआ क़यामत के दिन मैदान महशर में। मेरे भाइयों बुजुर्ग दोस्तों, माहे शाबान की जो फजीलत बयान की गई, जो सुन्नत रसूल बतलाई गई, उस पे अमल करो और जो बिदअतें आपको बतलाई गई हैं इनसे अपने आप को तौबा कर लो। कोई अगर इस गांव में इन बिदअतों को अंजाम देता है, वो इस तकरीर को सुनने के बाद, कुरान और हदीस के इल्म में आ जाने के बाद उनको तौबा कर लेनी चाहिए। अगर वो तौबा नहीं करते हैं, अपने जिद में मुसीर रहते हैं, हर धर्मी करते हैं, तो फिर तैयार रहे मैदान महशर में धक्के खाने के लिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से क्या है, पानी पीना उन्हें मुकद्दर नहीं होगा, आखिर में क्या है वो जहन्नमी करार पाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को सही माने में कुरान और हदीस पर अमल करने, समझने और अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। शिर्क, बिदअत और खुराफात इनको समझने, इनसे दूर रहने की तौफीक इनायत फरमा। तौहीद पर गामज़न रहने की तौफीक इनायत फरमा। सुन्नत रसूल पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। ऐ अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं, तो हम सब के गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। ऐ अल्लाह, जहां कहीं भी मुसलमान परेशान हाल है, अल्लाह उनकी परेशानी को दूर अता फरमा। जो लोग ईमान की हालत में दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत अता फरमा। ऐ अल्लाह, हम गुनहगार हैं तो हमारे गुनाहों को बख्श दे, माफ कर दे। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसनतन व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولا ذكر الله تعالى علوا وزل وتم وهم وأكبر